my message is लेकिन मेरा पैगाम ये है 5 things 5 चीजें that kills you spiritually. जो रूहानी तौर पर आपको मार देती है. Amen. Are you ready for this? तैयार है कितने हैं जो सुनने के लिए तैयार है? Because this is a story for every believer. क्योंकि ये हर ईमानदार की कहानी है. This is a story for every church member. हर कलीसिया के बंदे की कहानी है. This is the story of every second leader. हर एक रहनुमा की कहानी है. Are you taking me? समझ आ रही है? Remember this. This याद is very रखें, सुनिए, important. बहुत जरूरी है. The church जो कलीसिया है is not for the place for normal people. ये आम लोगों के लिए जगह नहीं है. Are you taking me? समझ आ रही है? The kingdom of God is not the place for the normal people. जो खुदा की बादशाहत है वो आम लोगों के लिए नहीं है. This is for extraordinary people which belong to the God. ये जो खास से खास और अहम होते हैं जो खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं उनके लिए है. Amen. आमीन. Let's move forward a little bit. And थोड़ा let's सा go in आगे the आ first जाए. point. Rishata Rabha. लाभारा शोध Welcome भलो you को. all. आप सबको खुश आमदीद करते हैं. Beautiful. खूबसूरत है. Imagine तसव्वुर करें you are in the kingdom of God कि आप खुदा की बादशाही के अंदर हैं and it is crowded like this. और वहां पर ऐसे ही हजूम हो. There will be no place for you to stand. तो आपके लिए वहां पर खड़े होने की जगह ना हो. Hallelujah. हालेलुया. 5 things that kills you spiritually. 5 चीजें जो रूहानी तौर पर आपको मार डालती है. My first point this morning. नंबर 1, Competition and comparison. मुकाबला बासी और अपना मुआवजा दूसरों से करना. Amen. आमीन. That kills you spiritually. ये रूहानी तौर पर चीज आपको मार देती है. When you come in the presence of जब God आप खुदा की हजूरी में आते हैं and you are comparing yourself with somebody और आप किसी के साथ अपनी जिंदगी का मुआवजा कर रहे and हो you are doing competition with और that आप person, मुकाबला कर रहे हो उसके साथ, it kills you spiritually. तो रूहानी तौर पर आपको अंदर से खोखला हलाक कर देती है. Are you taking me? समझ आ रही है? When you are comparing yourself जब आप अपना मुआवजा करते हैं दूसरों से, with the person right next to you जो भी आपके साथ होता है, and you are doing competition with that person, और मुकाबला करते हैं दूसरों के साथ, it kills you spiritually. तो रूहानी तौर पर आपको ये चीज हलाक कर देती है. Very dangerous. ये खतरनाक बात है And that is going on in every second believer. और ये हर ईमानदार के अंदर आज के दौर में पाया जा रहा है. You see that in your life. आप अपनी जिंदगी में देखें, You see in your friends. आप अपने दोस्तों में देखें, You see in your relatives. आप अपने रिश्तेदारों में देखें That comparison and competition kills you spiritually. कि जिंदगी का मुआवजा और मुकाबला बासी रूहानी तौर पर हलाक कर देता है. It is very dangerous poison ये बहुत ही खतरनाक एक जहर है that is activated in the believers these days. जो ईमानदारों के अंदर शुरू हो जाता है. They are worshiping the Lord, वो खुदा की हमद करते हैं, but when they come in the church, लेकिन जब वो चर्च में आते they compare themselves with others, वो दूसरों के साथ मुआवजा करने लगते and then they do the competition with them, और फिर मुकाबला शुरू हो जाता है. and that act killed their life spiritually. और ऐसा अमल रूहानी तौर पर हमें मुर्दा बना देता है. Are you taking me, church? समझ आ रही? I see in the church. मैंने कलीसिया में, चर्च में, इबादत में देखा है. I am responsible for my church. मैं कलीसिया का जिम्मेदार हूँ. I am responsible for your life. मैं आपकी जिंदगी का भी जिम्मेदार I am हूँ. responsible for these leaders. मैं इन रहनुमाओं की भी जिंदगी का जिम्मेदार I am हूँ. responsible for this choir. मैं इस क्वायर का भी जिम्मेदार हूँ. I am responsible for the management. मैं इंतजामिया की जिंदगी का भी जिम्मेदार हूँ. But what I see
लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ There is a competition. कि आज के दौर में मुकाबलाबाजी है, There is a comparison. आज के दौर में मुआवजा है दूसरों से। Understand it. इस बात को समझे If you are a believer in the church, कि आप अगर ईमानदार है कलीसिया में, don't compare yourself with the other believer. तो दूसरे ईमानदारों के साथ अपनी जिंदगी का मुआवजा मत करें, Don't compare yourself with the other church member. और दूसरी कलीसिया के मेंबर्स के साथ अपनी जिंदगी का मुआवजा ना करें। God has appointed you for खुदा ने the आपको reason. रखा है एक मकसद वजह के लिए। God have His calling for your life for a reason. खुदा ने आपको बुलाया है किसी वजह के लिए, मकसद के लिए। Where you are pointed, it is for the reason. जहां पर आप ठहरे हुए, रुके हुए, खड़े हैं, किसी वजह के लिए खड़े हैं। If God has pointed you in the management, अगर खुदा ने इंतजामिया में खड़ा किया है, don't compare yourself with the security. तो आप सिक्योरिटी के साथ अपनी जिंदगी का मुआवजा मत करें। If God has pointed you as a prayer warrior, अगर खुदा ने आपको दुआया ग्रुप में रखा है, don't compare yourself with the church leader. आप रहनुमा के साथ अपनी जिंदगी का मुआवजा ना करें, Don't do competition with each another. मुकाबला एक दूसरे के साथ ना करें। And this has happened in the church. और कलीसिया में ऐसे ही हो रहा है। They are very prouded. वह बड़े मगरूर नहीं, Pastor give them as a security or management. They are very prouded. पास्टर साहब ने इन्होंने जिम्मेदारी दी है, सिक्योरिटी दी, ए बड़े गरूर रख देने। We are abusing. हम एक दूसरे के ऊपर बुरी बातें गाली गलौज करते हैं। I see this lady every time in the church. Oh, she come to Rachel every time. Ah, she is. मैंने इस बहन को देखा है हर टाइम बाजी नाल चंबड़ी रहंदी है। Ah. ऐसे ही है। Oh, they don't let us go. They don't want, we will go. ये नहीं चाहते कि हम आगे जाएं, Oh, but this lady is always attached. लेकिन आ बुढ़ी जड़ी ना 24 घंटे नाल नाल ही रहंदी है। We are comparing ourselves with the other person. हम दूसरों के साथ अपनी जिंदगी का मुआवजा शुरू कर देते And हैं, then we are doing competition with other person. और फिर ना मुआवजा करते हैं बल्कि मुकाबला शुरू कर देते हैं। This is not just in the members. ये ना सिर्फ कलीसिया के मेंबर्स के अंदर, This thing is in the management. ये इंतजामिया के अंदर भी है। Oh, this woman is very close. ओ ए बाजी बड़ी कोल कोल रंदी है। Oh, Sister Rachel, Pastor John, listen her. पास्टर जॉन ते पास्टर रेचल सिर्फ एदी सुनते ने। Oh, they don't listen anybody ओ else. और किसे नहीं मानते। They don't listen me. ओ मेरी भी नहीं सुनते। Huh? सोचते हैं कई दफा ऐसे हम We are comparing ourselves with the next person. हम दूसरे के साथ अपनी जिंदगी का मुआवजा शुरू कर देते And हैं, when we start comparing ourselves, और जब हम अपने आप का मुआवजा शुरू करते हैं, and we start doing competition, तो फिर मुकाबले की जड़ पैदा हो and जाती we है। said, oh, you know, और फिर हम क्या कहते हैं, ओ तेनू पता है this Baji Parveen, ए बाजी परवीन जड़ी है, she's not a good woman. ए चंगी नहीं जिएगी। Huh? हैं जी, फिर ਅਸੀਂ थोड़ा थोड़ा करके सारे Look at her character. वेख वेख जरा इनू। Oh, in the church, she Church is ਦੇ at the ਅੰਦਰ। front line. चर्च दे अंदर अगे बैठी हुंदी है, Oh, in the church. चर्च दे अंदर, But look at her house. लेकिन घर च इनू वेख जरा किसी दिन। Oh, I knew her. आ घर दे अंदर वेख हर टाइम लड़ाई रहंदी, Look at her. इनू वेख जरा, Look at her style. इंदी किरदार नू वेख जरा। Oh, she praise God. ओ चर्च च बड़े नारे मारदी है। We are comparing ourselves and now we are doing competition. हम पहले मौजना करते हैं, फिर हम उसके साथ मुकाबला शुरू कर देते हैं। Huh? Are you taking me, church? समझ आ रही है? And what is happening on Parveen's life? Nothing. अब परवीन की जिंदगी में क्या है? ओ तो कुछ भी नहीं है कि बेचारी, It kills you spiritually. लेकिन ऐसी बातें करने से अंदर से आप रूहानी तौर पर मर रहे हैं। It destroys your connection with God. आपका राब्ता जो है वो खुदा से खत्म हो जाता है ऐसे, Because you are against the God people. क्योंकि आप खुदा के ईमानदार लोगों के खिलाफ बड़बड़ाते हैं। Are you taking me, church? समझ आ रही है? This thing is not just in the members or in the management or in the choir, it is in the leaders. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीजें कलीसिया, इंतजामिया या आम लोगों में नहीं बल्कि रहनुमाओं में भी पाई जाती This है। is in the church leaders. ये चर्च के पादरियों में भी पाई जाती है। Oh,
He have a big church. ओ इन्ना दा बड़ा वड्डा चर्च है। They are very prouded people. ये बहुत ही ज्यादा घमंड करते हैं इस बात Look at them. They are going on the Prados. और इन्ना नु देखो ए बढ़िया बढ़िया गड्डियां च फिरदे ने Earn the money from the people. लोगों ने कोई चंदा इकट्ठा कर देने Now they are feeling proud. अब इनके अंदर बड़ा गुरूर घमंड आ गया है। We are comparing ourselves with the other. हम दूसरों के साथ अपने आप का मुआवजा शुरू कर देते हैं। Oh, even I have a small church. बेशक मेरा छोटा सा चर्च Oh, but I praise God. लेकिन मैं खुदा की तारीफ करता हूँ। Oh, I read the Bible. मैं बाइबल पढ़ता हूँ I got the degree. और मेरे Oh, डिग्री भी I नहीं am है। very close to God. मैं खुदा के बहुत करीब हूँ They are not. लेकिन वो नहीं है। Are you taking me, church? ऐसे हम कहना शुरू हो जाते हैं ना कि ਅਸੀਂ चंगे या दूजे नहीं। Comparing ourselves with the other ministry. हम खिदमत में दूसरों के साथ मुआवजा शुरू कर देते हैं And then we start doing competition. और फिर उन्हीं के साथ मुकाबला शुरू कर देते हैं। I will see how they will do prayer festival. मैं देखांगा कि इन जो प्रेयर फेस्टिवल कर देने। Father, I pray. ए बाप मैं दुआ करता हूँ। Let their prayer festival will be cancelled. जिदो इन्हां दा प्रेयर फेस्टिवल होए ते परमिशन ही कैंसिल हो जाए। Father, I pray. ए बाप मैं दुआ Let करना। there will be a rain. ओथे बारिश हो जाए। People will never give them place. ओ लोग उन्हां नु जगह ही ना देन। Father, I pray. ए बाप मैं दुआ करना। They will be die. ए ते मारे जाने थो। Huh? Are you taking me? के मुकाबले Now की one नौबत leader- यहाँ तक आ जाती है। Now one leader is praying for other church. अब एक पादरी दूसरी कलीसिया के लिए दुआ कर रहा है। One leader is praying for other church. अब एक पादरी चर्च के लिए दुआ कर रहा है। One pastor is praying for other ministry. अब एक खिदमत गुजार दूसरे के लिए कैसे दुआ कर रहा है। Father, let their prayer festival be cancelled. ए बाप इनका प्रेयर फेस्टिवल कैंसिल हो जाए। Doing competition. क्या वो कर रहा है? दरअसल मुकाबला कर रहा है। Are you taking me? समझ आ रही है? Comparing their self अपना मुआवजा कर रहा है खिदमत with में the उनसे। other ministry. दूसरी खिदमत मिनिस्ट्री में। It kills you spiritually. तो ऐसा करना आपको अंदर से मार डालता है रूहानी It तौर पर। kills your ministry spiritually. आपकी खिदमत को भी रूहानी तौर पर हलाक कर देती है Maybe चीजें। you can grow physically, but you will die physically. बेशक आप बदनी तौर पर तरक्की कर रहे हो लेकिन रूहानी तौर पर आप मर जाते हैं। Are you taking me? समझ आ रही है? I'm just giving you example. It's not happening with us. I'm just giving you मैं example. आपको मिसाल दे रहा हूं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। It's very important. तो ये बहुत जरूरी है। When you compare yourself with other and do competition, it kills you spiritually. कि जब भी आप अपना मुआवजा या मुकाबलाबाजी दूसरों से करते हैं तो इस तरह से आपकी रूह अंदर से मर जाती है। I never compare myself with other leaders. मैंने कभी अपना मुआवजा दूसरों के साथ नहीं किया। I never compare myself with any other people. मैंने कभी किसी शख्स के साथ मुआवजा नहीं किया। Because what I am is my am. क्योंकि जो मैं हूं सो मैं हूं। Are you taking me, church? समझ आ रही है? God has created you for the unique purpose. खुदा ने एक खास मकसद के लिए आपको पैदा किया। God has created Rachel for the unique purpose. खुदा ने खास मकसद के लिए रेचल को कायम किया, बनाया। God has created Pastor Naveed for the reason. खुदा ने पास्टर नवीद को भी एक वजह और मकसद के लिए बनाया। God has created Pastor Faryad for a reason. पास्टर फरियाद को भी एक वजह और मकसद के लिए बनाया। God has created you for the reason. खुदा ने आपको भी एक वजह और मकसद के लिए पैदा But किया। if you will do competition, लेकिन अगर आप मुकाबला करेंगे, if you will go out from your territory, अगर आप अपनी हदूद से बाहर निकल जाएंगे, then it kills you spiritually. तो फिर ऐसे काम रूहानी तौर पर आपको मार देते हैं। Hello, church. Are you taking me at the कितने back? नु समझ आ रही है? पीछे वाले भी। Oh, many people don't understand it. बड़े लोगों नु लगता है समझ नहीं आ रही। Let me give you the example. मैं आपको मिसाल देता हूँ। In the Bible, बाइबल के अंदर, there is a very powerful story of Cain and Abel. बाइबल के अंदर दो भाइयों की बड़ी खूबसूरत कहानी है, कायन और हाबल की। Both are brothers. बहुत अच्छे दोनों भाई हैं।
Both are praising God. और बहुत अच्छी खुदा की प्रस्तुति करते हैं दोनों। Both are coming in the presence of God. दोनों खुदा की हजूरी में आते हैं। They bring their offerings in the presence of the Lord. वो खुदा की हजूरी में अपनी अपनी कुर्बानी चढ़ाते हैं। Cain bring the offering in the altar of God. अब जो कायन होता है वो अपनी कुर्बानी अपना हदिया लेकर आता है खुदा की हजूरी में। Abel bring his offering in the presence of God. और हाबिल भी जो है वो भी लेकर आता है अपना हदिया। Now both presented in the altar of the Lord. अब खुदा के आगे वो मज़बा पर रख देते हैं अपने अपने हदिये। And the Bible says और बाइबल कहती है God accepted the offering of the Abel. खुदा ने हाबिल का हदिया जो है वो कबूल कर लिया। Hello church. Now Cain अब जो कायन है do comparison with Abel. वो हाबिल के साथ अपना क्या कर रहा है, मौजना कर रहा है, मेरा हदिया क्यों नहीं कबूल किया। Are you taking me? समझ आ रही है? Now he do the competition with Abel. अब वो इतना जल रहा है कि मुकाबला करना शुरू हो जाता है। And when he do the competition, और जब मुकाबला करना शुरू हो जाता he है kill his own brother. वो अपने ही सगे भाई का कत्ल कर देता है। Are you taking me? समझ आ रही है? Both church members are coming on the altar of God. वो दोनों ईमानदार थे और खुदा की हुजूरी में मज़बा के पास अपने हदिये लाए। Are you taking me, church? समझ आ रही है कलीसिया? Please understand, it's very important. ये Please बहुत come. जरूरी Both है of you. ईमानदारों के लिए। Both of सुनिए, you. One more. एक और आ जाए कलीसिया, बेटा कोई आए, आप आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। Now Abel bring church member. अब हाबिल जो है वो चर्च के मेंबर लेकर आया है। No, he is a church member. अब ये कलीसिया का मेंबर है। And he bring his offering on the altar of God. अब ये भी खुदा के लिए हदिया लेकर आया है। And Cain bring the offering on the altar of God. अब कायन भी जो है वो भी हदिया लेकर आया है। See, both are in the presence of God. अब ये दोनों के दोनों खुदा की हजूरी में मज़बा के आगे है। Both are serving Lord. अब ये दोनों ही खुदा के आगे है Both are worshiping God. और दोनों ही उसकी हम्द करते हैं। Now, Abel offering is accepted by the Lord. अब जो हाबिल है इसका हदिया कबूल हो गया When है। he prayed to God, जब इसे खुदा से दुआ की, when he cried to God, जब ये खुदा के आगे गिड़गिड़ाया, his offerings are accepted. तो इसका हदिया कबूल हो गया। Now Cain, a second church member, अब जो दूसरा चर्च का मेंबर है कायन, Satan is saying to them, look at him. शैतान ओदे काने च कहंदा ए वेखे येनू, He got his miracle. ओने अपना मौजा ले लिया, Or he's doing drama. या ए ड्रामा कर रहा है। Do you know about him? तू जानना है दे बारे च कुछ? He is nothing, zero. ए कुछ भी नहीं हैगा, जीरो ही। Doing acting in a church. ए चर्च दे अंदर सिर्फ ड्रामे करदा ही। Are you taking me? समझ आ रही है? शैतान इंज तड़े कन्ना च आवाज पांदा है। And now Cain got aggressive. अब कायन जब शैतान की बात सुनता है तो गुस्से में आ जाता है Then he killed his own brother. और फिर वो अपने भाई को मार देता है। एक्टिंग own- कर मारन दी भाई, His own. ओदा brother. अपना सका भरा। Thank you. This is happening. ये ऐसा हो रहा है। हम People are कलीसिया में fighting. खानदान है, We are fighting with each another. हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। We are खानदान, doing competition with each हम एक other. दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं And that kills us spiritually. और ये चीजें जो है वो रूहानी तौर पर हमें हलाक कर रही है, मार डाल रही है। Amen. आमेन। What I want to tell you, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ if you are a prayer warrior, कि अगर आप दुआया ग्रुप में है, जंगजू है, don't compare yourself with other people. तो दूसरों के साथ मौजदा करना छोड़ दे। If you are bringing people in the kingdom of God, अगर खुदा की बादशाही में लोगों को ला रहे हैं, if you are inviting people to come in the church, अगर आप दूसरों को दावत दे दे चर्च के लिए, don't compare yourself with other people. तो दूसरों के साथ मौजदा करना छोड़ दे। If you are just staying in your house and praying for the leaders, अगर आप सिर्फ घर में रहते हैं, रहनुमाओं के लिए दुआ करते हैं, don't compare
yourself with other people. तो दूसरों के साथ मौजदा करना छोड़ दे। If you are a worshiper or a player, अगर आप बजाने वाले हैं या गाने वाले हैं don't compare yourself with other people. तो दूसरों के साथ मौजदा करना छोड़ दे। If you are a church leader, अगर चर्च के रहनुमा है don't compare yourself with other leaders. तो दूसरे पापियों के साथ मौजदा करना छोड़ दे। If you are in the management team, अगर इंतजामिया में है don't compare yourself with other people. तो दूसरों के साथ मौजदा करना छोड़ दे। Are you taking me? समझ आ रही है? Because this thing will kill you spiritually. क्योंकि ये सारी चीजें आपको मार डालती है रूहानी तौर पर। Amen. आमीन। Are you understanding me, church? कितने जिनको समझ आ रही है, जरा दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। Second thing that kills you spiritually. और दूसरी चीज जो रूहानी तौर पर आपको मार देती है, When you are away from the believers. जब आप इकट्ठे होने से ईमानदारों से दूर हो जाते हैं। Are you taking me, church? समझ आ रही है? When you are separate yourself from the other believers, जब आप ईमानदारों से अलग कर लेते हैं अपने आप को, then it kills you spiritually. तो ऐसी चीज भी हमें रूहानी तौर पर मार देती है। Are you taking me? Please come. समझ आ रही है? Both of you, handsome boys, आगे आ जाए दोनों, and three of you. और तीन आप भी। Look at them, so beautiful. देखिए Please इनको, नौजवान। Come, hero. Look at them, so beautiful. Let's give a clap for this beautiful man. आइए इन नौजवानों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। So, when you take yourself away from the believers, जब आप ईमानदारों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, it kills you spiritually. तो रूहानी तौर पर ऐसी चीजें आपको हलाक कर देती है। Did you got the point? आपको समझ आई है? Now, in your life, आपकी जिंदगी में you have a friends. आपके दोस्त होते हैं। You have a friends. This is his friend. आपके दोस्त है, जैसे ये इसका दोस्त है, This is his family member. ये इसके खानदान का हिस्सा है, This is his other cousin. ये एक और इसके ताए का बेटा है, This is his friend from the job. अब ये इसकी नौकरी करने वाली जगह का दोस्त है। Now you are covered by the people in your life. अब आप लोगों के साथ गिरे हुए हैं। Isn't it? ऐसे ही है, Hello? तरह तरह के लोग आपके साथ इकट्ठे हैं, ऐसे ही है। Oh no, you don't understand me. समझ नहीं आई? Please come. 1, 2, 3. आ जाओ काका, All आप भी gone, आ all जाओ। gone. 4, please come. 5. आ जाओ, 4-5 बीबियां बच्चियां, आगे आ जाओ। Let's give clap for the daughters. आइए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। Come quickly. Faster. So now she's mama. ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਲੱਭੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। See, beautiful mama. अब देखें माँ जी को, She have a best friend. इनकी भी अच्छी ये दोस्त है। She is a best friend of her. अब ये बहुत अच्छी एक दूसरे की दोस्त है, एक दूसरे को जरा पकड़ ले शोल्डर She के साथ। is a cousin of her. अब ये भी इसकी जो है वो कजन है, She is a family member. अब ये इसके खानदान का हिस्सा है, And this is another relative. अब ये भी एक और रिश्तेदार है, फूफी दी कुड़ी। So now you see, अब आप देख रहे हैं, you are covered by the people. अब तरह तरह के लोगों ने आपको घेरा डाला हुआ And है। every day you are meeting with them. हर रोज आप इनसे मिलते हैं, Every day you are communicating हर with them. रोज आप इनके साथ गुफ्तगू करते You हैं, are sending messages every morning. आप हर सुबह आप पैगाम भेजते हैं, You are doing a call every day. हर रोज आप फोन करते हैं। Oh, how are you? और तेरा क्या हाल है? Oh, did you eat food? खाना खा लिया? Oh, how's your husband? तेरा शौहर कैसा है? How's your wife? तेरी बुढ़ी ठीक है? Oh, what is happening with other cousin? अच्छा दस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? Now you are communicating with अब हर people रोज हम इस तरह से गुफ्तगू करते हैं, every day. हर रोज Your relationship is growing, आपका रिश्ता इनके साथ बढ़ रहा है। isn't it? ऐसा ही है ना? Hello, church. ऐसा ही है ना? Please stay with me. हमारे साथ रहिएगा, Stay जवाब alive दीजिएगा। with me. जिंदा है ना? कितनी जिंदा है? हमारे साथ रहिएगा, I need your reaction. हमें आपका जवाब चाहिए। So now you are communicating and you are building your relation. अब जब गुफ्तगू होती है, रोज राब्ता होता है, तो रिश्ता बढ़ता है।
You are making connection at your place, at your workplace, in your home. आप अपने घर में, नौकरी की जगह पर, रिश्तेदारों में बनाते हैं रिश्ता। You cannot stay alone. आप अकेले नहीं रह सकते। Hello. Every one of you have a friends and the relatives. हर किसी का रिश्तेदार है, दोस्त है, अहबाब है जिंदगी में। And you are meeting with them every day. और हर रोज आप उनसे मिलते हैं। Are you taking me? एंज है कि नहीं जिंदगी च? But when the time comes for the church, लेकिन जब वक्त आता है कलीसिया का, oh, I was sick. हाय आज ते मैनू बुखार हो गया, Oh, that's why I'm not coming in the church. आज नहीं मैं जाना चर्च। Oh, my relatives came in. हाय इन्हां दी फुफी आ रही है, I don't want to go to the church. आज नहीं मैं जाना। Oh, my younger cousin have a wedding. ओए मेरे चाचे दे मुंडे दा ब्याह है आज, I am not going to the आज church. नहीं मैं जाना, तैयारी करनी है। And when you are in a pain, लेकिन ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ दर्द शुरू हो जाए, huh? Then you will just post on Facebook, please pray for me. ते फिर जल्दी ना फेसबुक खोलनी है, तो प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करो। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, पाजी साहब मेरे लिए दुआ कर दो। You have a people, आपके पास लोग हैं, but you don't have a believers. लेकिन आपके पास ईमानदार नहीं है आपके आसपास। Are you taking me? समझ आ रही You है? are making connection at your place, आप अपनी जगह पर रास्ते तो बना रहे but you हैं, are not making connection in the church. लेकिन कलीसिया के अंदर आपका कोई रिश्ता नहीं Is है। there somebody in your life आपकी जिंदगी में कोई ना कोई होना चाहिए who will ईमानदार, pray for you जो आपके लिए दुआ करे when you are in the tears? जब आप आंसू में हो। Is there somebody in your life who pray for you? क्या कोई आपकी जिंदगी में है जो आपके लिए ऐसे दुआ करे? Hello, church. Are you connected क्या आपका ताल्लुक उनसे है बड़ा नजदीकी? with the church believers? ईमानदारों के साथ, जमात के साथ, Do you have a relationship with the church believers? क्या ईमानदारों की जमात के साथ आपका ऐसा गहरा ताल्लुक है? You have a connection with your cousin. रिश्तेदारों के साथ तो है, You have a connection with your job person. अपनी नौकरी के साथ तो है, You have a connection with your best friends. अपने दोस्तों के साथ तो है, You have a connection with relatives. रिश्तेदारों के साथ तो है, You have a people around you. आपके इर्द गिर्द हर तरफ लोग ही लोग होते हैं। Please come, Sharon. Somebody else. कोई और? Do you have a person क्या कोई आपके पास शख्स है who pray for you? जो आपके लिए रो रो के दुआ करे? Do you have a person क्या कोई आपके पास शख्स है when you are in the कि pain जब आप दर्द में हो, who will lay hand on you आपके ऊपर वो हाथ रखे and cry with the tears और for वो your आंसू life? के साथ दुआ करे आपके लिए? Do you have a person क्या आपके पास ऐसा who शख्स will है do the fasting for you जो आपके लिए रोजे रखे and covers you और आपको संभाले when you are in the pain? जब आप दर्द में हो? Hello. समझ आ रही है? Do you have a person क्या ऐसा शख्स है who will cry for you with the tears? जो आपके लिए आंसू के साथ रोए और दुआ My करे? daughter, please. इधर आओ बेटा, गल्ला बंद Please करो, come. उधर आओ। Please come. Do you have a आगे आओ। person? क्या आपके पास कोई Please sit शख्स down. है? Do you have a person क्या आपके पास कोई शख्स है when you are in the pain in कि your जब आप house दर्द में मुब्तला हो, who will lay hand on you जो आपके ऊपर हाथ रखे and pray for you? और आपके लिए दुआ करे? Do you have somebody in the church क्या कोई कलीसिया में है आपके पास who do fasting for you? जो आपके लिए रोजा रखे? Do you have a person? क्या आपके पास ऐसा शख्स है? You have a friends. आपके पास दोस्त है, You have a relatives. रिश्तेदार है, You have a cousin. आपके पास कजन भी है, You have your uncle boy. आपके अंकल भी है, You have everybody. हर कोई है। But do you have somebody लेकिन क्या ईमानदारों की जमात में से कोई आपके साथ है who will cry, जो आपके लिए रोए, who will bring you in the presence of जो God? खुदा की हजूरी में आपको लेकर आए? Are you connected in the church with the believers? ईमानदारों के साथ क्या आपका राब्ता वाकई है? Are you connected with the prayer group? क्या आप दुआया ग्रुप से ईमानदारों के साथ जुड़े हुए हैं, ताल्लुक Are रखते you हैं? connected with the church leader? क्या आप पादरियों के साथ जुड़े हुए हैं? You are
doing everything in your life. अपनी जिंदगी में हर काम कर रहे हैं आप। You are eating food. आप खाना खाते हैं। When you are sick, जब आप बीमार होते हैं, you never forget to go to the doctor. आप भूलते नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए। You don't forget to eat medicine. आप दवाइयाँ खाना नहीं भूलते। Why you are not coming in the church when you are sick? जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो फिर आप क्यों भूल जाते हैं कि आज मैं चर्च जाना है? Hello. When you got sick, many people they don't come in the church. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ। Are you taking me? समझ आ रही है? You are taking yourself away from the presence of God. आप खुदा की हजूरी से ईमानदारों की जमात से अपने आप को दूर ले जाते हैं। And many people just said to us, और बहुत से लोग हमसे कहते हैं, oh, your team did not treat us well. ओ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। This is not my team. ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ, This is God's team. ਇਹ खुदा दी टीम है। And you are not here for team. और आप यहाँ पे टीम के लिए नहीं आते। You are not here for me. आप मेरे लिए यहाँ पे नहीं आते। You are here for Lord. आप खुदा के लिए यहाँ पर आते हैं। Many people, they are not coming in the church because, oh, team did not treat us well. बहुत से लोग चर्च में नहीं आते क्योंकि क्या कहते हैं, और टीम ने साढ़े नाल चंगा नहीं कीता। Oh, this is not my team. और मेरी टीम नहीं हैगी। You all are my team. आप सारे मेरी टीम है। We are at the team of Jesus Christ. हम यीशु अल मसीह की एक जमात है, टीम है। हालेलुया। Then you stop coming in the church. और फिर हम क्या देखते हैं चर्च में आते हुए? We are not coming in the church. हम चर्च में नहीं आते। Oh, I will never go in the church. और मैं नहीं जाना। Oh, their team is not good. ओए उन्हां दी टीम नहीं सही। Oh, their security team is not good. ओए उन्हां दी सिक्योरिटी बड़े धक्के मार दी। Oh, their pastor are prouded. ओए उन्हां दे पादरी ते दुआ करना पसंद ही नहीं करते। Oh, their church member was pushing me. ओए उन्हां दे चर्च दे लोग बड़ा आगे पीछे कर देते। Oh, my slipper, somebody stolen my slipper. ओ मेरे ते जुत्ती गवा जाती है ਜਦੋਂ मैं जाना। I will never go to the church. मैं नहीं जाना। Hello. एनजी है। Are you taking me? समझ आ रही है? We make ourselves alone. हम अपने आप को तन्हा अकेला कर देते हैं। We are not a part of the believers. हम ईमानदारों की जमात में ठहरना ही नहीं चाहते। Now they are praising God. अब वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं। And I'm at my house. और मैं अपने घर में हूँ। They are praising the Lord. वो तो खुदा की तारीफ कर रहे And हैं। I'm watching at my house. और मैं अपने घर में देख रहा हूँ। They are praying to the Lord. वो खुदा से दुआ कर रहे हैं। And I'm at my house. और मैं अपने घर में हूँ। They are growing spiritually. और वो रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं। And I'm just changing my channel. और मैं सिर्फ अपने चैनल ही टीवी दे बदली जा रहा हूँ। They are growing in the kingdom of वो God. खुदा की बादशाही में तरक्की कर रहे हैं। And I'm saying to them, look at them. They are doing acting. ते मैं घरों बह के आई कही जाने ओ ड्रामे करन दे। Hello. ऐसे है। Oh, there is nothing in the church. कलीसिया च चर्च च कुछ नहीं हुंदा। What church is giving you? चर्च सानू की दे रहा है? Huh? What church is giving you? ऐसे घर बैठ के हम कहते हैं चर्च इन्हां नू की दे रहा है? Hello. I am watching 3 movies every day. हर रोज 3 फिल्मां देख लेना मैं। Oh, very good. बड़ा अच्छा मजा आंदा है। I watch every drama. हर ड्रामा में देखना। They are growing spiritually. वो रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं। They are in the part of the kingdom of वो God. खुदा की बादशाही का हिस्सा बन रहे हैं। And I am making myself alone. और मैंने अपने आप को अकेला घर में बंद किया हुआ है। I kill my spirit. मैं अंदर से अपनी रूह को मार रहा हूं। Are you taking me, church? समझ आ रही है? They are praising the Lord. वो चर्च में कलीसिया में खुदा की हम्द कर रहे हैं। I am killing myself. लेकिन मैं घर में अपने आप को अपनी रूह को मार रहा हूं। When I separate myself from the believers. जब मैं ईमानदारों की जमात से अलग हो जाता हूं। If you all are praising God. अगर आप सब के सब उसकी हम्द करें। And I will
look here and there. और मैं सिर्फ सज्जे खब्बे ही देखता रहा। You are growing in the kingdom of God. आप खुदा की बादशाही में बढ़ रहे हैं। And I am killing myself spiritually. तो मैं अकेला अपनी रूह को मार रहा हूँ। You praise God 2 hours in the church. आप 2 घंटे उसकी हमदो सना कर रहे हैं। And 2 hours I'm using phone sitting in the church. और 2 घंटे मैं बैठकर फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ चर्च में। I'm killing myself. तो इसका मतलब है कि मैं अपनी रूहानी रूह को मार रहा हूँ। I am not with the believers. मैं ईमानदारों के साथ नहीं हूँ। I am not with the church members. मैं कलीसिया के लोगों के साथ I नहीं am हूँ। not with the leaders. मैं रहनुमाओं के साथ नहीं हूँ। I am Don. मैं क्या हूँ? इलाके का डॉन। Huh? I am everything. मैं अपने आप में सब कुछ समझना हूँ। Oh, I have money. I am well dressed. पैसा या कपड़े ने, I wear tie. टाई भी पाई है, I am handsome. स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है, नौजवान भी है, I am everything. सारा कुछ है। They are just doing acting. ओ यार चर्च च सिर्फ ड्रामे करन आंदे ने। I don't have a relation. इनके साथ रफाकत नहीं My है। spirit is not connected. मेरी रूह का ताल्लुक नहीं है। Are you taking me, church? समझ आ रही है? If you are away from the believers, अगर आप ईमानदारों की जमात से दूर होंगे it kills you spiritually. तो इस तरह की चीज रूहानी तौर पर आपको मार देगी। Are you understanding me? कितने को समझ आ रही है? Thank you इस so बात? much. God bless you. बहुत बहुत शुक्रिया। God bless you. It's very important, church. ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। Understand this. इस बात को समझे जाने। You have to build a relationship आपको जरूर है कि एक अच्छा रिश्ता कायम करें with the believers. ईमानदारों की जमात में। When you are in the church, कि जब आप कलीसिया में हो build relation with other men. तो दूसरों के साथ राब्ता कायम करें। I'm not saying the girls will meet with the man. I'm saying boys have a relationship with the man. मैं ये नहीं कह रहा कि कुड़ियां मुड़ियां ने ना, मैं कह रहा हूं कि बच्चे बच्चों के साथ और बेटियां बेटों के साथ। Understand it. I want to clear this. इस बात को समझे कि हमारा राब्ता होना चाहिए। Church is not a dating point. जो चर्च है या चर्च की जगह है वो मिलने मिलाने की जगह नहीं है। No, 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 no. नहीं 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 नहीं। Church is not the place where girls and boys will meet. No. चर्च वो जगह नहीं है जहाँ पर लड़के और लड़कियां मिलते मिलाते हैं। Church is the house of God. बल्कि बाइबल कहती है कि चर्च जो है वो इबादत की जगह है। Amen. जहाँ पर हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। You have to have relationship with other men. जरूर है कि हम ईमानदारों के साथ रिश्ता The बनाएं। girls must have the relation with other girls. और बेटियां जो है बेटियों के साथ रिश्ता When बनाएं। you are in the pain, जब आप दर्द में हो somebody will pray for you. तो आप मैसेज करें ताकि वो दुआ करे आपके। When your friend never come in the church, you will ask them why you are not जब coming in the आपका church. दोस्त चर्च में नहीं आया उनसे पूछे क्यों नहीं आया, What is going on? क्या हो गया। Let's go to Hebrew chapter number 8. इब्रानियों 10वां बाब पर उसकी 25वीं आयत। Let's see this one. आइए जरा देखें खुदा के कलाम में इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत। और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। Did you listen? सुना है आपने? Hello. और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। Never give up. कभी To be हार मत gathered. हारे इकट्ठा होने से, Never. कभी भी नहीं। This is what the Bible is saying. क्योंकि बाइबल कह रही है Never. कभी भी नहीं। If you will stay alone, you will die. अगर आप अकेले रहेंगे तो मर जाएंगे रूहानी तौर पर। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। What is my first point, church? नंबर Thank एक you क्या so much. हमने सीखा आज? नंबर एक क्या सीखा था? कि हमने अपना मुआवजा दूसरों के साथ नहीं करना और मुकाबला नहीं करना। और नंबर 2, ईमानदारों की जमात से दूर नहीं जाना। ऐसी चीजें हमें रूहानी तौर पर मार देती I हैं। have very short time. वक्त थोड़ा कम है। Many people are making question.
Oh, I don't have a money, that's why I'm not coming in the church. बहुत से लोग आगे से सवाल का जवाब देते हैं, ओ पैसे नहीं देंगे इसलिए चर्च नहीं आए. I don't have a house rent, that's why I'm not coming in the church. मेरा अपना घर नहीं, किराए पे रहने आए इसलिए चर्च नहीं आए. Oh, I don't have a food in my house, that's why I'm not coming in the church. ओ आज साढ़े घर च रोटी नहीं सी पक्की है इसलिए नहीं आए. That is your problem. But what is the link with the church? ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है. ये मसला चलता ही रहता है, लेकिन इसमें चर्च का क्या कसूर है? Hello? Are you taking me? समझ आ रही है? Third thing, नंबर 3, when you are in the sin, it kills you spiritually. कि जब आप गुनाह में मुब्तला होते हैं तो तब रूहानी तौर पर मर जाते हैं. Amen? Amen. Rachel, can I take your time? Yes, of course. Can I preach or should we close it and Rachel will take testimonies? कितने हैं जो और खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं? No? कितने हैं जो सुनना चाहते हैं? Third point is, when you are in the sin, it kills you spiritually. नंबर 3 चीज, जब आप गुनाह के अंदर होते हैं तब रूहानी तौर पर आप मर जाते हैं. It kills your spirit. आपकी रूह हलाक हो जाती है. When you are staying in the sin, जब आप गुनाह में मुब्तला रहते हैं, even when you are in the church, जब आप कलीसिया में भी होते हैं, your mind is constantly thinking about sin. तो बार बार आपका दिमाग, सोच, दिल गुनाह के बारे में सोच रहा होता है. When you are in the presence of God, जब आप खुदा के घर में होते you हैं, are still constantly thinking about sin. आप लगातार गुनाह के बारे में सोच रहे होते हैं. It kills you spiritually. तो ऐसी चीजें रूहानी तौर पर मार देती हैं आपको. Are you taking me, church? समझ आ रही है? You are calling yourself Christian. आप अपने आप को मसीही तो कहलाते हैं. If I will say I'm John Masih अगर मैं कहूं मैं रेचल मसीह हूं and I'm constantly taking alcohol and drugs, और मैं लगातार डेली कुप्पी पी लूं, शाम पर पी लूं, I'm abusing people, मैं लोगों के गाली गलौच में करूं, I'm fighting, मैं लड़ूं भी, and every Sunday I will come in the और church हर त्योहार चर्च में आ जाऊं, and I will say, God, listen my prayer. और मैं कहूं खुदा मेरी दुआ सुन And ले, when I will go out from the church, और जब मैं चर्च से बाहर जाऊं, again I will drink on Sunday और फिर मैं राज्य के कुप्पियां पीवा, and I will beat my wife. और बुढ़ी ने भी राज्य के I will कुटा, beat my children. बच्चा ने भी कुटा. Hello, I'm constant in sin, लगातार. not a Christian. तो इस तरह का शख्स मसीही नहीं कहलाता. Sin गुनाह, kills my spiritual life. जो गुनाह की जिंदगी होती है वो रूहानी तौर पर मार देती है. Are you taking me, church? समझ आ रही है? Hello. The Bible says, बाइबल कहती है wages of sin is death. कि गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है. Romans 6:23. आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए. रोमियो 6 बाप उसकी 23वीं आयत. It said the wages of sin is death. क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है. It kills you spiritually. रूहानी तौर पर आपको मार देती है. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Fourth point नंबर 4 that kills you spiritually. जो आपको रूहानी तौर पर मार देता है, When you have anger in your life, जब आपकी जिंदगी में हर टाइम गुस्सा रहता है, when there is anger growing in your life, जब गुस्सा बढ़ता है, नफरत बढ़ती है, it kills you spiritually. तो रूहानी तौर पर ये काम भी आपको मार देता है. When you are angry every time, जब हर वक्त आप गुस्से में नजर आते हैं, when anger is taking over your life, जब आपकी जिंदगी पर गुस्सा गालिब आ जाता है, it kills your life. तो आपकी जिंदगी को हलाक कर देता है रूहानी तौर पर. Are you taking me, church? समझ आ रही है? Many people have this. बहुत से लोग गुस्सा करते हैं. Many people carry this in their life. बहुत से लोगों ने अंदर ही अंदर गुस्से को पकड़ के रखा है. Many leaders carry this life. बहुत से पादरियों की जिंदगी के अंदर भी गुस्सा है. If somebody will just say to you something, अगर कोई भी कोई निक्की जी गल भी कर दे your meter short. तो एकदम ਤੁਹਾਡਾ ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. I will never leave this person. तू बाहर आ, तेनों मैं दसदा है. Let him come after the church. चर्च तो बाहर आ, तू मैं तेनों I दसदा. will see you. मैं तेनों वेख लागा.
Patras, भाई पतरस come, आज 10 बंदे लेके आ, bring the gun as well. बंदूक भी लाया। This Pastor Akram is very proud person. ए पादरी अकरम ने आज देख लेना सी। Hello. आता है ऐसे गुस्सा के नहीं आता? Anger. हमारे अंदर क्या है? गुस्सा, हर टाइम गुस्सा, It growing और ये बढ़ता है, every day. हर रोज बढ़ जाता है, Every day. हर रोज। And at the time come और फिर वक्त आता है when it blast, एकदम धमाका हो जाता है। kills our spiritual life. तो इस तरह का गुस्सा हमें रूहानी तौर पर मार देता है। We are statue coming in the church. हम बुत बनकर चर्च में आते हैं। Even you are here or anywhere else. बेशक आप यहाँ पर या किसी भी जगह पर जाते हैं, We are just a statue. हम एक बुत की तरह जाते हैं। Amen. आमेन। Competition and comparison वास्ता और मुकाबलाबाजी kills your spiritual life. रूहानी तौर पर मार देती है। Are you taking me? समझ आ रही है? Staying away from the believers. ईमानदारों से दूरी अपना लेना It kills your spiritual life. ऐसी चीज रूहानी तौर पर मार देती है। Hello. Staying in the sin kills your spiritual life. गुनाह में मुब्तला रहना रूहानी तौर पर मार देता है। Anger kills your life. हर रोजमर्रा का गुस्सा आपको मार देता है रूहानी तौर पर। Hello, church. Last point. आखिरी बात, Staying away from God kills your spiritual life. जब आप खुदा की कुर्बत से दूर रहते हैं तो ये भी आपको रूहानी तौर पर मार देता है। I am not going in the church. मैं चर्च नहीं जा रहा। Oh, God is everywhere. खुदा हर जगह ये। Why they call to the church? क्यों हम चर्च कहते हैं? God is present here. खुदा यहाँ पे मौजूद है। God is present in the church. खुदा चर्च में मौजूद है। Why I will go to the church? मैं चर्च क्यों जाऊं? It is better I will stay in my house. बेहतर है मैं कार ही बह के दुआ कर लवा। Now they are praising God for 2 hours in the church. अब ये कलीसिया में, चर्च में, इबादत की जगह में 2 घंटे दुआ कर रहे हैं। And I am watching movies in the home. और मैं घर में बैठ के फिल्म देख रहा हूँ। And when somebody will ask me, you are not coming in the church. और कोई मुझसे कहे चर्च नहीं आ पा रहे, My reply is this. तो मेरा जवाब ये होता है, God is everywhere. खुदा ते हर जगह ये। Oh, I pray in my house. मैं कार ही दुआ कर लूंगा। They are praying in the church. वो चर्च में दुआ कर रहे And I हैं am watching television. और मैं उस वक्त क्या कर रहा हूँ? फिल्म देख रहा And हूँ। when people said, और जब लोग पूछे why you are not coming in the church? आप चर्च में क्यों नहीं आ रहे, I said, oh, I will pray in my house. God is everywhere. मैं घर में दुआ कर रहा था क्योंकि खुदा तो हर जगह पर है। In the home, घर में I never prayed. मैंने बिल्कुल दुआ नहीं की। I put my Bible. मैंने अपनी बाइबल में के लिए I cleaned my Bible. अपनी बाइबल को साफ सूफ करके And I put it on the floor. और मैंने अपनी शरबत्ती के ऊपर सजाकर रख दिया। Wow. Hello? Let's see the signs here. I'm feeling my signs. I put my Bible on the floor, on the top. मैंने क्या किया? शरबत्ती पर बाइबल को रख दिया। Oh, you are not coming in the church? आप भाई चर्च में आ रहे हो? Oh, God is everywhere. खुदा ते हर जगह बाजी। I'm watching television. मैं घर में क्या कर रहा हूँ? टीवी देख रहा I'm हूँ। eating food. मैं खाना खा रहा हूँ। I'm doing everything. मैं सब कुछ कर रहा हूँ घर में। But when people said, you are not coming in the लेकिन church? जब लोग कहते हैं चर्च नहीं आए, Oh, God is everywhere. खुदा हर जगह है। Yes, God is everywhere. हाँ ये सच है, खुदा हर जगह है। Have you have connection with God? लेकिन आपका रास्ता ताल्लुक कहाँ पर है खुदा के साथ? I never prayed. करते मैं दुआ ही नहीं की थी, मैं तो झूठ मार देती। I put my Bible on the shelf. बाइबल भी शरबत्ती में रख देती। Hello. ऐसे ही है। God is everywhere. खुदा ते हर जगह है। Oh yes, God is everywhere. हाँ ये सच है, खुदा हर जगह पर है। But is God in my life? लेकिन क्या खुदा मेरी जिंदगी में है? Hello.
I turn on the television, Christian station, King Television. और मैंने क्या किया, किंग टेलीविजन ऑन कर लिया Oh, I'm watching it. और मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, They are doing praise and worship. ओ यार दुआ कर रहे हैं, Wow. बड़ा चंगा लग रहा है, God is everywhere. खुदा हर जगह पे है। God is everywhere. हाँ खुदा हर जगह पे है। You are not coming in the church. चर्च में नहीं आ रहे आप, You never prayed. आप दुआ भी नहीं कर रहे And you are saying God is everywhere. और सिर्फ आगे से जवाब मिलता है खुदा हर जगह पे। They are praying. वो लगातार दुआ कर रहे हैं चर्च में, They are worshiping God. वो खुदा की हम तो सना कर रहे हैं I चर्च am में, just watching them. लेकिन मैं सिर्फ देख रहा हूँ The blessings they will receive. और वो बरकतें ले रहे हैं, I'm just watching them. मैं सिर्फ देख रहा हूँ। Are you taking me? समझ आ रही है? They are praying. वो दुआ में ठहरे हैं, They are in the presence of वो God. खुदा की हजूरी में They कुर्बान में are हैं, deeper in the love of the Lord. वो खुदा की इलाही मोहब्बत के अंदर है। But I said, लेकिन मैं क्या कहता हूँ आगे oh, से? God is everywhere. कि खुदा तो हर जगह ये। Rachel, you will go take children in the church. God is everywhere. रेचल बच्चन भी ले ला, तू भी चली जा, चर्च हो आओ। I will stay at home मैं घर रखना ख्याल किधर रखना ना घर दा, because God is everywhere. क्योंकि खुदा ते हर जगह ये तेनू पता ही है। Oh, this, you know, the lady come from your church. They are just doing acting. God is तेनू पता everywhere. तेरे चर्च एक बुढ़ी आई सी, And she said, come in the church. You will go. I will stay at home. At my home. कि उन्हें कैसी चर्च आना, चल तू चली जा, मैं घर ही रहना। Because God is everywhere. God said He is everywhere. क्योंकि खुदा ने कहा है खुदा हर जगह पर है। Are you understanding me? समझ आ रही है? Is the God in my life? लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं अकेला हूँ, टीवी देख रहा हूँ, तो क्या खुदा मेरी जिंदगी में है? When they are, my wife and my children are praising God in the church, am I praying during that time? वो घंटे जब मेरी बीवी बच्चे दुआ में गुजार रहे हैं और मैं घर में टीवी देख रहा हूँ, तो क्या खुदा मेरी जिंदगी में है? Hello. If my husband is in the presence of God, अगर मेरा शौहर खुदा की हजूरी में है, am I praying at my home for my husband? और मैं घर में अपने शौहर के लिए दुआ कर रही हूँ। Hello, my sisters. बहनों, Is there God in our life? तो क्या खुदा हमारी जिंदगी में है? It's a question mark. ये सवालिया निशान है हमारे लिए Are we growing spiritually? कि क्या हम रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं Or we are just filling the seats in the church? या सिर्फ एक खाना पूरी कर रहे हैं चर्च में? It's very important. ये आज बहुत ही अच्छा सवालिया You निशान have to build relationship with God. जरूर है कि खुदा के साथ रिश्ता कायम करें। When you are working, जब आप काम कर रहे हो pray, shata, तो दुआ करें, गैर ज़बानों में दुआ करें। When you are cooking, जब आप खाना बना रहे हो pray, rikandriya, तो दुआ करें, हम rabba. तो सुना करें। When you are driving on your motorcycle, जब आप अपनी गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, रिक्शे पर जा रहे हो pray, I praise God, तो I खुदा praise की the Lord. तारीफ करें, हम तो सुना When you are in your school, जब आप स्कूल में हो pray to God, fondo rikata. खुदा से दुआ करें, गैर ज़बानों में दुआ करें। When you are building the houses, जब आप घर की तामीर कर रहे हो भाई जो है pray, shata, तो खुदा से rabba. दुआ करें। When you are doing tailoring, pray while you are making जब आप clothes. कपड़े सिलाई कर रहे हो दुआ करें। Are you taking me? समझ आ रही है? Boost your spirit. आइए अपनी रूह को ताज़ा दम करें, उसको खिलाएं रूहानी तौर पर। Amen. आमीन। Done. बरकत मिलिए।